As I said in my last video, we are doing with English session in this video. Let's start with without investing time. Okay, CLET aspirants. CLET contain 20% of English session. You can say 28 to 30 questions. An ability that CLET consortium wants you. These are comprehension, and you can able to comprehend a passage in maximum 5 minutes. And also language skills, you have ability to draw inference in the conclusion, ability to summarize passage, identify arguments and the viewpoints of author, and fifth one is word meaning and phrases. Okay, and can I also, and there are some books which I can also prefer you. There's a Ren and Martin, which is really good book for grammar, and because it contain practice question also, and vocab for this is word power made easy. When you read it, you can realize how much beneficial for you. And also newspaper, and newspaper also for the comprehension, because when you are able to get the glimpse and correct idea of the passage which are in newspaper, so you can also make question from there, and this become a very great source for comprehension for you. Okay, and you are also updated from there. So in this video we are I'm doing an I analyze a first passage of 2020 exam paper for you. Left are for you. When you are realize that you are able to use last year exam paper as a mock for you, so you can do it. Because if we are doing all the things now, what are for the left? And if you find any of difficulty later in it, you can tell me, I can help you. Okay, so in that passage, what author want to say you? Author said that climate change is considered to be a threat for sustainable development, adverse impact on environment, human health, food security, and that all. And there is a panel called environmental intergovernmental panel on climate change. So it said that there's a need to take some precautionary action for this condition, for reduce climate change. Okay, also author ने इसमें बोला है that vulnerability to climate change, it not just on geographical and on the dependence on natural resources, but there are some other factor. You can say this is a social, economic, and a political factor and dimension which affect how people is affected by the climate change. So we can take example, like there is a flood condition, rich and poor people are there. There's of course both are affected, but who are going to affect more? This is a poor people, because already he suffer from lack of natural resources, poverty, and now the flood condition become more dangerous for poor people, because somehow rich people can able to survive even in that condition. Okay, so is also take that condition. So what is the solution for it? What author said that to to get defense against that uncertain future, there is a process called adoption process. You can take it. So because we all know हम completely जो नेचुरल कैलमिटीज़ है उनको ख़त्म नहीं कर सकते, बट वी कैन रिड्यूस इट बाय सम प्रिकॉशंस. सो इट कैन दिस adoption is a example of that. Okay, so how you can boost it? There's a some next tools. You can say technology, you can say some managements. There is a better water management, improve risk management, and you can also provide some insurance to those poor and affected peoples. Okay, so you can reduce it. And further he also said that बिकॉज ग्लोबल जो वार्मिंग है वो इतनी हाई लेवल पे इंक्रीज़ हो रही है, सो बहुत ज़रूरी है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो जल्दी से एडोप्शन प्रोसेस को अडोप्ट कर लें. लाइक नेशनल एडोप्शन प्लान also are implemented, so it can reduce the impact of climate change. That's why communities need more flexible, they can adopt technology. And अब otherness में एक और concept का जोड़ दिया, that is traditional knowledge. Why? Because if people
if technology mixed with traditional knowledge, so it become more beneficial to those people who are suffer from that condition, that global warming. Okay, so I थिंक दैट यू गेट द आइडिया ऑफ दैट पैसेज कि जो ऑथर है उसने क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव्स हैं जो क्लाइमेट चेंज के इसके अंदर मिलाए हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. So you can connect the questions from the passage. First, before questions, before doing question, let's understand one thing. पैसेज को पढ़ने के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. लाइक फर्स्ट इज़ कि उनका कंसंट्रेशन पावर इतना कम होता है कि उनका ध्यान कहीं और है और वो पढ़ कुछ रहे हैं. दैट्स वाई दिस इज़ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम विद मैनी ऑफ द एस्पिरेंट्स. ओके, सो जब आप पढ़ रहे हो तो आप कोशिश करो कि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके पैसेज पे हो. आप वहाँ से ये निकाल पाओ कि एटलीस्ट वो कहना क्या चाह रहा है कि लाइक. एंड सबसे बड़ी बात कि अगर पैसेज ने आर्टिकल और अपनी प्रीवियस नॉलेज, रिलेटिव प्रीवियस नॉलेज अपनी मत यूज़ कीजिए. जो वो पैसेज कहना चाह रहा है ना, सिर्फ उसी पे फोकस कीजिए. लाइक अगर पैसेज बोल रहा है कि आर्टिकल 19 इज़ टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी बिफोर लॉ, like this is under article 14. If article 19 is talking about equality before law, so you can assume that article 19 is that, because they don't want to check the knowledge, they only want to these abilities in you. Okay, so you have to check these abilities by yourself again and again when you are reading newspaper. So let's start with our questions. In the first question, to address the challenge of climate change, developing countries urgently require what? So अब जैसे कि हमने इस पैसेज को पढ़ा है कि इसमें जो ऑथर है वो क्या कह रहा है कि भाई क्लाइमेट चेंज है वो अफेक्ट कर रहा है. तो इसमें एक पैनल है, उसने बताया है कि इसके लिए प्रिकॉशनरी मेथड लेने ज़रूरी हैं. फिर अभी ऑथर ने इसमें एक और पॉइंट को उठा दिया कि भाई जो जियोग्राफी है, लाइक बहुत सारे एरिया हैं कि जहाँ पे फ्लड आना आती रहती है. देयर आर सम एरियाज़ लाइक आसाम हो गया, केरला साइड हो गया, बट लाइक द हरियाणा, पंजाब, यू कैन से छत्तीसगढ़, यहाँ पे बहुत कम जो है फ्लड जैसी कंडीशंस बहुत कम देखने को भी मिलती हैं. तो जियोग्राफी एरिया है, फिर नेचुरल जो डिपेंडेंस है वही फैक्टर जो है पीपल को अफेक्ट नहीं करते हैं क्लाइमेट चेंज के दौरान, बट अलग कुछ और हैं जैसे कि यू कैन से इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल. ठीक है, तो उसने ये वाला पर्सपेक्टिव इसमें मिला दिया. फिर इसने बता दिया कि भाई अब इस अनसर्टेन फ्यूचर से बचने के लिए इन पीपल्स को अडॉप्शन प्रोसेस को अपना लेना चाहिए. इस अडॉप्शन प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ टूल्स हैं लाइक टेक्नोलॉजी, सम मैनेजमेंट्स एंड द इंश्योरेंस ऑप्शंस, सो यू कैन प्रोवाइड देम एंड दे कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट. ओके, सो फर्दर उन्होंने बोला है कि भाई अब इनके साथ आप टेक्नोलॉजी के इसको बूस्ट करने के लिए आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, कुछ मैनेजमेंट्स को यूज़ कर रहे हो, बट टेक्नोलॉजी के साथ इफ़ यू यूज़ ट्रेडिशनल नॉलेज इट बिकम मोर बेनिफिशियल फॉर दोज पर्सनस हु आर टैकलिंग विद दैट डेंजरस कंडीशन. ओके, तो यहाँ से हमें एक बात तो पता चल गया कि भाई कहीं ना कहीं भी अडॉप्शन के बारे में बता रहा है हमें. तो जब हमने डेवलपिंग कंट्रीज़ और एज यू कैन सी इन द लास्ट लाइन्स, सो यहाँ पे भी इसने बताया कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए नेशनल अडॉप्शन प्लान को अडॉप्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे ध्यान ना भी दिया, उसने जल्दी जल्दी में पढ़ लिया हो कि भाई सिर्फ मुझे पढ़ना है, बिकॉज क्लैट डोंट वांट यू दैट यू आर ओनली रीडिंग इट, डोंट अंडरस्टैंड. सबसे पहली बात है, इफ़ यू गेट टाइम इन इट, सो प्लीज़ उसे अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश कीजिए, बिकॉज वो चाह रहा है कि आप उसको अंडरस्टैंड करो. अगेन आई एम फोकसिंग इन दीज एबिलिटीज़ यू वॉन्ट इन योर सेल्फ. सो नाउ अब आपने चलो यहाँ से एक वर्ड जो है वो ग्रैब कर लिया, दैट इज़ अडॉप्शन. इफ़ यू आर एबल टू गेट दैट वर्ड, सो यू कैन एलिमिनेट दैट वन. लास्ट वन तो आपने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया, बिकॉज हमने कहीं पे भी क्लाइमेट चेंज टेक्स्ट के बारे में तो उसमें कहीं पढ़ा ही नहीं. सो इफ़ वी आर एलिमिनेटेड, वी हैव लेफ्ट विथ 3 पॉइंट्स. दीज आर, सो समहाउ बी को भी हम एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन अब जो बंदों ने सिर्फ पढ़ा है, अंडरस्टैंड नहीं किया, सिर्फ पढ़ा है, तो वो सी को भी मार्क कर सकते हैं. वाई? बिकॉज दे इज़ टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन.
ऑफ कोर्स उसने इसने टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के बारे में बोला है, बट सी उसने यहाँ पे उसके बारे में ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में बोला है। उसने बोला है कि एडॉप्शन प्रोसेस को एक सप्लीमेंट देने के लिए हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, ये नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करो। ओके, दैट्स वाई सी इज़ ऑल्सो नॉट आर आंसर, सो क्लियरली ए आंसर इज़ देयर। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द, बिकॉज वो भी आपको कंफ्यूज करना चाहता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। इफ़ वी कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, next question that is given below are the factor of vulnerability of poor people to climate change. Select the option that contain the correct answer. Can you understand कि भाई vulnerability people है कि जो बंदे बिल्कुल अफेक्ट हो सकते हैं जल्दी से। जो vulnerability है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो पुअर पीपल हैं उनको अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग क्लाइमेट चेंज। सो द डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स बिकॉज पुअर पीपल जो होते हैं वो नेचुरल जो रिसोर्सेज उन पे ज़्यादा होते हैं डिपेंड। एज यू कैन सी इधर उन्होंने यहाँ पे बोला तो है कि भाई सिर्फ नेचुरल या फिर जोग्राफिकल डिपेंडेंस नहीं, बल्कि जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है वो भी उसने एक अलग से इसमें पॉइंट डाला है। तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये पॉइंट पैसेज के अंदर से निकालने हैं, एंड यू आर ओनली फाइंडिंग आउट दीज points when you are habitual to read and read. So now come to the next point, that is lack of financial resources. Of course financial resources है वो connected है economics से। If you come to the lack of traditional knowledge, of course not, traditional knowledge तो हो ही नहीं सकता। Why? Because you can see कि जो poor people होंगे उनके पास traditional knowledge तो होगी। That's why तो जो ऑथर है उसने बोला है कि भाई टेक्नोलॉजी के साथ आप ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज़ करो, क्योंकि जो बंदे इस चीज़ से बार बार अफेक्ट हो रहे हैं उनके पास एटलीस्ट कुछ तो होगा कि वो अपने आप को डिफेंस कर सकेंगे। उसी को उन्होंने ट्रेडिशनल नॉलेज बोला है यहाँ पे। ओके, तो आप उस ट्रेडिशनल नॉलेज को तो नहीं है, सो क्लियरली आंसर इज डी। अगर किसी ने बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको पूछा होगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई क्या किस तरीके वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, क्या वो पूछ रहा है, क्या मेन क्रक्स वो पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखो जैसे कि उसने इस वाले में भी, इसमें वो चेक करना चाह रहा है कि कितना जो बच्चा है या फिर एस्पिरेंट है उसने कितना और कितना डीपली जो है पैसेज को समझा है, कितना वो उधर की बात को ग्रैब कर पाया है। उसी के बीच में से उसने इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए। और रियली आप ये तो बिल्कुल एज्यूम मत कीजिए कि बिल्कुल एग्जैक्टली आपको आंसर मिल जाएगा या फिर एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन मिल जाएगा जैसा पैसेज में दिया होगा। ऑफ कोर्स वो पैसेज में होगा बट एग्जैक्टली नहीं होगा। वो आपकी एबिलिटीज़ चेक करना चाह रहा है। दे डोंट वांट रट्टा तो लाइक स्टूडेंट। ओके, सो नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द आइडिया पोर्ट्रेट इन द पैसेज। अगर हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करें, एंड चलो अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है और आप एबल हो ग्रेस्प करने के लिए तो आप आंसर दे दोगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सो व्हाट यू वांट टू डू, यू कैन यूज़ द अदर मेथड दैट इज़ एलिमिनेशन। सो इन दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द आइडिया पोर्ट्रेट इन द पैसेज। जो आइडिया इसमें पोर्ट्रेट है, क्या क्या इसने आइडियाज़ पोर्ट्रेट किए हैं पैसेज में ऑथर ने, जैसे कि हमने पहले भी इसको समराइज़ किया है। अब आप खुद से इसको देखिए कि क्या क्या आइडिया पोर्ट्रेट किए हैं, और अब देखते हैं कि कौन से इसके अगेंस्ट हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन रीजनल एंड नेशनल एफर्ट्स इज़ नेसेसरी। ऑफ कोर्स आइडियाज़ ने बताया है कि भाई रीजनल, ट्रेडिशनल एंड नेशनल की टेक्नोलॉजी के साथ हम यूज़ करें तो वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। वो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छे एफर्ट्स लेके आए जा सकें। सो इज़ रियलिटी गुड, वो तो अगेंस्ट है ही नहीं, वो तो वही बोल रहा है, ऑथर बोल रहा है इस बात को। तो बी इज़ we left it for some time. If we come to C, social dimension of climate change also need to be appreciated. Social dimension, of course he's talking about clearly economic, social and political dimensions. So if you can get ideas from there, see कि यहाँ पे उसने कुछ तो ऐसी चीज़ें वो डायरेक्टली दे रहा है, लेकिन आपके समझने में जो है वो डिफ़िकल्टी हो जाती है। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग इट रॉन्ग। सो इफ़ यू कम टू D, combining traditional knowledge with appropriate technology is need of our, वही तो ये बोल रहा है, इसको और इसको तो इसने कनेक्ट ही कर दिया। दिस इज़ द नीड ऑफ कोर्स। सो अगर आपने ये तीनों पॉइंट्स में पढ़े हैं ना, तो बी आप बिना पढ़े लगा दोगे अगर आपको अंडरस्टैंड भी नहीं हो रहा है कि आप मतलब वो कहना क्या चाह रहा है।
तो वो कुछ ऑप्शंस देगा ऐसे कि आप नहीं हो पाओगे समझ में, आप नहीं पाओगे, और वो सभी के लिए होगा डिफ़िकल्ट, सिर्फ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला वो। ओके, द ट्रेडिशनल नॉलेज शुड बी यूज्ड थ्रू, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो किसके थ्रू जो है वो यूज़ करनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन नेशनल सर्कमस्टांसेस, देयर इज ऑप्शंस। ओके, इम्प्रूवमेंट इन नेशनल सर्कमस्टांसेस, सिनर्जी बिटवीन गवर्नमेंट एंड द लोकल इंटरवेंशंस, imposition of climate change tax, its dissemination। ओके, सो अब यहाँ पे आप देखिए, लाइक क्लाइमेट चेंज टैक्स तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, तो भाई इसे तो हटा ही दो। इम्प्रूवमेंट इन नेशनल सर्कमस्टांसेस, किसके थ्रू, नेशनल सर्कमस्टांसेस में इम्प्रूवमेंट के थ्रू हमें वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ऐसा तो उसने कहीं बोला ही नहीं है। यू कैन ऑल्सो सी दर लाइक with the like local coping strategies and knowledge need to be used in synergy with government and the local interventions। अगर आपकी नज़र उस पर भी हो गई है तो आप करेक्ट इसको करने वाले हो, अदरवाइज़ तो अगर नहीं हुआ है तो इन दोनों को तो एलिमिनेट कोई कर ही सकता है। तो BOD में इस तरीके से भी फंस सकते हैं बच्चे कि दे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वोकैबुलरी दैट ऑप्शंस कंटेन, ये भी कन्फ्यूज़न पार्ट है, इसलिए वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। बिकॉज यू कैन सी कि पैसेजेस में इतने डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी वो यूज़ नहीं करते हैं, बट सम टाइम ऑप्शंस में वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी डाल देते हैं, सो यू आर कन्फ्यूजिंग इन इट। वहाँ पे आपको अपना स्मार्ट माइंड यूज़ करना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिसाइलेंस? सी, रिसाइलेंस का मतलब क्या है? अगर आपको पता भी ना हो तो यू कैन ऑल्सो यूज़ एलिमिनेशन मेथड दर, सो फ्लेक्सिबिलिटी इज आंसर। तो वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अब वो क्या वो आप पता लगा रहे हो कि क्या वो चाह रहे हैं आपसे कि आप इन्फ्रेंस ड्रॉ करो, आप समराइज़ करो, आप कुछ जो व्यू पॉइंट्स है उतर के उस पर काम करो, इस तरीके से कुछ जो कॉम्प्रीहेंशन का आपको ग्रेस्प है वो निकालना है। ऑफ कोर्स वो चाह रहा है। और यहाँ पे कुछ टिप्स हैं कि आप है ना मॉक्स कीजिए, बट टोटली मॉक्स पे डिपेंड होना दिस नॉट रियली गुड। एट द एंड ऑफ द डे आपके पेपर से कुछ डेज पहले या फिर कुछ वीक्स पहले यू कैन अगेन प्रैक्टिसिंग मॉक पेपर यू कैन से लास्ट ईयर एग्ज़ाम पेपर एज यू मॉक। ओके, बिकॉज वही आपकी जो रियल एबिलिटी है ना वहीं पे चेक होने वाली है, दैट्स व्हाई। तो आप उनको अपना मॉक पेपर यूज़ करने एज अ मॉक पेपर यूज़ कीजिए। तो अब ये देखिए कि जैसा आपको ये वाला अंडरस्टैंड हुआ है, सेम स्ट्रेटेजी यू कैन अप्लाई टू द फर्दर क्वेश्चंस if you want, so we can also do these questions later when after you can say after your 12th boards, so you can get and you are also able at that time to get them and get the correct idea from there. From before it you can also do it by yourself. So there are also the questions, so you can see the questions like main purpose, you can see the company learned, these are the like punctuation he also asking like कि आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए उसके बेसिस पे आपसे इन्फरेंस पूछ ली, इसने वोकैबुलरी क्वेश्चन दे दिए, टोन क्वेश्चन दे दिए, यही क्वेश्चंस बार बार वो पूछ रहा है आपसे पैसेज में। और ये हैबिट आपको जब भी हो सकती है जब आप रीड करते होगे, जितना आप रीड करोगे दैट्स वेरी गुड फॉर यू। See, I show you these questions because if you don't have that, so you can also take screenshot and do it by yourself. And if you want any further help from me, you can tell me, I can help you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।